Hello everyone, welcome to economics class. Today we will start our next chapter. This is related with money. In this very chapter we will discuss about the definition of money, then the functions of money in brief, because the topic related with functions of money is not in your syllabus. After that we will discuss about the money supply or supply of money. Okay beta, let's start the topic. What is money? Anything which is commonly accepted as a medium of exchange is called money. For example, rupee in India is called money. Now, what's about the money? कोई भी ऐसी चीज़ that facilitates the sale and purchase of goods and services will be known as money. Now, what's about the time period that was before the evolution of money? Actually, in the initial period, there was barter system of exchange. Barter system of exchange is also known as CC economy. Now, what is barter system of exchange? Barter system of exchange is a system in which goods and services are exchanged for goods and services. Means exchange is the main term. There is no existence of sale and purchase. Actually, barter system is not prevalent, not prominently exist in present era. It was the concept related with the initial stages of initial stages of economic activities. Once again, I am going to repeat the definition. Barter system of exchange refers to a system in which goods and services are exchanged for goods and services. मैं शूज़ बना रही हूँ और मुझे वीट की ज़रूरत है, तो मैं एक ऐसे आदमी को ढूंढूंगी जो मुझे वीट प्रोवाइड कर सके और मेरे शूज़ दे सके. मीन्स एक्सचेंज होता है, सेल एंड परचेज नहीं होता. नो व्हाट्स अबाउट द limited, what's about the CC economy? CC economy refers to commodity economy. Means an economy where commodities are exchanged for commodities. Barter system का ही दूसरा नाम CC economy है. Now what's about the limitations? Limitation में पहली limitation आ रही है. This is the double coincidence of wants. Double coincidence of wants is the prerequisite condition for exchange. What is double coincidence of wants? Double coincidence of wants refers to a situation when the two persons having the same commodities or the two persons possess the same commodity which are needed by each other. अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया कि मैं शूज़ बनाती हूँ और मुझे वीट की ज़रूरत है, तो मुझे इसेंशियली एक ऐसा आदमी ढूंढना पड़ेगा जिसके पास वीट हो और वो मुझे वीट दे सके और मेरे शूज़ भी ले. मतलब क्योंकि मैं शूज़ के अलावा उसको कुछ और दे नहीं सकती, तो मुझे एक ऐसा आदमी ढूंढना है जो मेरी वीट की रिक्वायरमेंट को पूरा करे और साथ में मैं शूज़ देकर उसकी रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकूं. तो ये होता है डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स. डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स जो है ये इनिशियल पीरियड में तो चल रहा था जब इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का लेवल बहुत कम था, मतलब वैरायटी नहीं थी या हमारी ज़रूरतें बहुत ज़्यादा नहीं थी, तब तक तो ये सिस्टम चल रहा था. लेकिन जैसे जैसे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का लेवल बढ़ना शुरू हो गया, तब ये वाला बार्टर सिस्टम भी फेल होना शुरू हो गया. अब आप बड़ी सिंपल सी बात, इन द एब्सेंस ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वॉन्ट्स एक्सचेंज वॉज नॉट पॉसिबल एट ऑल. सपोज करिए कि मुझे वीट वाला आदमी तो मिल गया है, लेकिन वो वीट प्रोवाइडर जो है वो मेरे शूज़ देना नहीं चाहता और मैं शूज़ के अलावा उसको कुछ दे नहीं सकते, तो ऐसे सिचुएशन में एक्सचेंज होगा ही नहीं. सो इन द एब्सेंस ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वॉन्ट्स द एक्सचेंज वॉज क्वाइट लिमिटेड. मीन्स देयर वॉज लिमिटेड डिग्री ऑफ एक्सचेंज. क्योंकि एक्सचेंज नहीं हो रहा था तो लेवल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ भी बहुत कम था, मतलब ग्रोथ प्रोसेस बहुत स्लो था. फिर सेकेंड पॉइंट, दिस इज रिलेटेड विद द एब्सेंस ऑफ कॉमन मेजरिंग रॉड. कॉमन मेजरमेंट और यूनिट ऑफ अकाउंट और यूनिट ऑफ वैल्यू. देखो बेटे, आज हर कमोडिटी को
हम बड़ी आसानी से मॉनेटरी टर्म्स में डिफाइन कर सकते हैं, लाइक द प्राइस ऑफ दिस चेयर इज़ ₹2500, price of this table is ₹5000, price of pen is ₹25, means each and everything can now easily be defined in terms of money. But is let's assume in the barter system, because in barter system every good is to be defined in terms of other goods. Like अगर हम कहें कि price of this chair is 2 goats और 2 sheep, या हम ये कहें कि price of this chair is 25 kg of tomatoes, क्योंकि goods are to be defined in terms of goods. तो ये बड़ा ज़्यादा डिफ़िकल्ट टास्क था, क्योंकि हम हर कमोडिटी को किसी दूसरी कमोडिटी में डिफ़ाइन नहीं कर पाते. सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आ रही थी? फ्रिक्शनल वैल्यूज़. अगर मैं ये कहूँ कि इस चेयर को हम 2 गोट्स के बदले में एक्सचेंज कर सकते हैं, तो 1 गोट के बदले में हम कितने चेयर को करेंगे? मतलब आधी चेयर को करेंगे, क्योंकि फ्रैक्शंस नहीं हो पा रहे थे. ये एक बड़ा मेजर इशू था बिकॉज ऑफ एब्सेंस ऑफ कॉमन मेजरिंग रॉड. अगर आज हम बात करें, मनी इज़ द कॉमन मेजरिंग रॉड, क्योंकि हम मनी से हर कमोडिटी को डिफाइन कर सकते हैं. लेकिन बार्टर सिस्टम में ऐसा कोई मेजरमेंट नहीं होता. नेक्स्ट, दिस इज़ अबाउट द लैक ऑफ डेफर्ड पेमेंट्स. डेफर्ड पेमेंट्स का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्चुअल पेमेंट्स, द पेमेंट्स विच आर टू बी मेड इन फ्यूचर. हम पूरा 1 महीना काम करते हैं, उसके बाद हमको सैलरी मिलती है. इसी तरह से बहुत सारे काम कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पर होते हैं. आज हमने सामान खरीद दिया, 2 महीने बाद पेमेंट देंगे या 3 महीने बाद पेमेंट देंगे, मतलब कॉन्ट्रैक्चुअल है. मनी देंगे, मनी की टर्म में मिलेगा. सपोज करिए कि 6 महीने काम करने के बाद अगर मुझे 50 किलो दूध पकड़ा दिया जाए, तो बताइए मैं उसका क्या करूँगी? मतलब डेफर्ड पेमेंट्स जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का बेस है प्रेजेंट सिस्टम में, बार्टर सिस्टम में ये होता ही नहीं था. डेफर्ड पेमेंट्स रिमेन quite impossible in barter system. Because of this very reason, the level of economic activities remain very low in CC economy. Now, what's about the difficulty of store of value? देखो बेटा, हमारे पास एक सिस्टम होता है, ये हमारा एक ह्यूमन नेचर है कि हम अपनी प्रेजेंट नीड्स के पूरा होते ही हम अपनी फ्यूचर के बारे में सोचना शुरू कर देते हैं. बड़ा समझदार माना जाता है वो आदमी जो पैसे बचाता है, मतलब स्टोर हम करना चाहते हैं. अब बार्टर सिस्टम में क्योंकि गुड्स होती हैं, तो स्टोरेज इन टर्म्स ऑफ गुड्स इज़ अगेन अ वेरी डिफ़िकल्ट टास्क. सपोज करिए मैं चेयर्स बनाती हूँ, फर्नीचर बनाती हूँ, चेयर्स बनाती हूँ, तो मैं चेयर्स को कैसे स्टोर करके रख सकती हूँ? सपोज करिए मैंने 250 चेयर्स मैंने स्टोर करके रख ली. सबसे बड़ी बात, इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ स्पेस, बहुत ज़्यादा जगह की ज़रूरत है. दूसरी बात, ये पेरिशेबल हैं, ख़राब भी हो जाएंगे. मैं कितने टाइम तक चेयर्स को संभाल के रख पाऊँगी? ख़राब हो जाएंगे. तीसरी बात, इनकी वैल्यू सेम नहीं रहेगी. अगर आज एक चेयर के बदले में मुझे 2 गोट मिलती हैं, 2 गोट्स मुझे मिल रही हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि 10 साल बाद भी मुझे एक चेयर के बदले में 2 गोट से मिलेंगे. पेरिशेबल है, टूट जाएंगे, ख़राब हो जाएंगे, इनकी वैल्यू भी सेम नहीं रहेगी. तो स्टोरेज ऑफ वैल्यू अगेन अ वेरी डिफ़िकल्ट टास्क इन केस ऑफ बार्टर सिस्टम. बिकॉज स्टोरेज बहुत मुश्किल है, तो ट्रांसफ़र ऑफ वैल्यू भी बहुत मुश्किल है. अब मैं यहाँ बैठे बैठे किसी अमेरिकन कंपनी के शेयर्स खरीद सकती हूँ, मतलब मैं इन्वेस्टमेंट कहीं भी कर सकती हूँ. सोच कर देखिए, मेरे पास चेयर्स हैं, 250 चेयर्स मैंने अभी इकट्ठी की हैं या मैंने उसको स्टोर किया है, मैं उसको कहाँ बेच सकती हूँ? ज़्यादा से ज़्यादा मैं उसको लोकल मार्केट में, मार्केट तो है ही नहीं है, मैं लोगों में ही दे सकती हूँ. मतलब क्योंकि स्टोरेज डिफ़िकल्ट है, तो ट्रांसफ़र ऑफ वैल्यू भी डिफ़िकल्ट है. मनी की एग्जिस्टेंस हुई बिकॉज ऑफ ऑल दीज लिमिटेशंस. दीज आर द लिमिटेशंस ऑफ बार्टर सिस्टम. बिकॉज ऑफ दीज वेरी लिमिटेशंस, अब मैं पास्ट में जा रही हूँ. बिकॉज ऑफ दीज लिमिटेशंस, the level of economic activities was quite low in barter system. That's why in order to handle these disadvantages, these limitations, money was evolved.
मनी, सो अब मैं एक मनी को नई डेफिनेशन दे रही हूँ. मनी कैन बी डिफाइंड एज एनीथिंग दैट फैसिलिटेट्स मीडियम ऑफ एक्सचेंज दैट works or that acts as a common measuring rod, that facilitates deferred payments, that facilitates the store of value, that facilitates the transfer of value. Let's define once again. Money refers to anything that acts as medium of exchange and facilitates unit of account या common measuring rod, deferred payments, store of value एंड ट्रांसफ़र ऑफ वैल्यू. ये पांचों चीज़ें हम पांचों को हम डिटेल में अब डिस्कस नहीं करेंगे. क्यों? क्योंकि आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि मनी होता क्या है. सो मनी कैन बी डिफाइंड एज एनीथिंग दैट एक्ट्स एज मीडियम ऑफ एक्सचेंज, देन दैट वर्क्स एज अ कॉमन मेजरिंग रॉड, दैट फैसिलिटेट्स डेफर्ड पेमेंट्स, स्टोर ऑफ वैल्यू एंड ट्रांसफ़र ऑफ वैल्यू. ओके बेटा, लेट्स स्टार्ट द टॉपिक. व्हाट्स अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ सप्लाई ऑफ मनी. डेफिनेशन को आपने बहुत अच्छे से याद करना है. सप्लाई ऑफ मनी इज़ द स्टॉक कॉन्सेप्ट. सबसे पहले तो यही ध्यान में रखिए, बिकॉज इट इज़ मेजर्ड एट अ पॉइंट ऑफ टाइम. वी हैव ऑलरेडी स्टडीड दैट स्टॉक इज़ अ वेरिएबल और अ क्वांटिटी or a characteristic or a phenomena that is measured at a point of time. Similarly, supply of money is a stock concept. It refers to total stock of money held by the people of a country at a point of time. Now, it is important to note that the supply of money does not include stock of money held by the government. अभी हम डिस्कस करेंगे कि मनी सप्लाई करता कौन है. मनी सप्लाई गवर्नमेंट करती है और बैंक्स करते हैं, आरबीआई करता है. तो जो मनी सर्कुलेशन में आ जाती है वो तो स्टॉक बन गया, वो तो सप्लाई ऑफ मनी बन गई. लेकिन जो प्रिंट करके नोट रख लिए गए हैं वो इशू नहीं हुए, अभी सर्कुलेशन में नहीं आए, तो उसको हम सप्लाई भी नहीं मानेंगे. एक छोटा सा एग्जांपल दे रही हूँ. सपोज़ करिए कि मैं एक प्रोड्यूसर हूँ और मैं कुर्ते बनाती हूँ. मतलब मैंने एक कुर्तीज़ का काम शुरू किया हुआ है. मेरे 1000 यूनिट्स मैंने प्रोड्यूस किए, जिसमें से 800 तो मैंने सर्कुलेट कर दिए, मतलब मार्केट में डाल दिए हैं बिकने के लिए. 200 का मैंने स्टॉक रखा हुआ है. क्योंकि मैंने उसका स्टॉक रखा हुआ है, मैंने उसको मार्केट में बेचने के लिए नहीं छोड़ा, तो वो मेरा सप्लाई में नहीं आएगा. जैसे हम कहते हैं ना, सप्लाई रेफर्स टू दैट अमाउंट दैट इज़ ऑफर्ड फॉर सेल. बिल्कुल उसी तरह से जो सर्कुलेशन में आ गया है वो तो बन जाएगी सप्लाई ऑफ मनी, और जो स्टॉक रखा है गवर्नमेंट के पास या बैंकिंग सिस्टम के पास उसको हम सप्लाई ऑफ मनी नहीं मानेंगे. सप्लाई ऑफ मनी में क्या आएगा? द टोटल स्टॉक ऑफ मनी हेल्ड बाय द पीपल ऑफ अ कंट्री एट अ पॉइंट ऑफ टाइम. नाउ, measurement of money supply. बच्चे, in India there are 4 measures of money supply known as M1, M2, M3 and M4. But we will discuss only about M1 measurement because in our syllabus there is only M1 measurement. M1 measurement is the most liquid measurement. liquid का मतलब होता है कैश फॉर्म में, जो मॉनेटरी फॉर्म में होता है. देखो, अगर हम बात करें, एक होता है डिमांड डिपॉजिट, एक होता है टाइम डिपॉजिट. हम बैंक में पैसे जमा कराते हैं. जो डिमांड डिपॉजिट्स होते हैं वो चेकेबल होते हैं, जिसको हम किसी भी टाइम विड्रॉ करा सकते हैं. जो टाइम डिपॉजिट होते हैं, जिनको हम फिक्स डिपॉजिट कहते हैं, ये चेकेबल नहीं होते. मतलब ये ऐसे डिपॉजिट हैं जिसको हम निकाल तो लेंगे लेकिन हमें उसी टाइम नहीं मिलेंगे. अगर मेरे बैंक अकाउंट में मैंने एफडी कराई है 5 लाख रुपए की, तो मैं एकदम चेक से उसको पैसे नहीं निकाल सकती, क्योंकि वो चेकेबल डिपॉजिट्स नहीं हैं. तो चेकेबल डिपॉजिट्स जो होते हैं, चेकेबल डिपॉजिट, वो कहलाते हैं डिमांड डिपॉजिट. जब हम M1 मेजरमेंट करेंगे तो M1 मेजरमेंट में हम सिर्फ डिमांड डिपॉजिट्स को ही कवर अप करेंगे, टाइम डिपॉजिट्स को नहीं करेंगे. डिफरेंट टाइप ऑफ डिपॉजिट्स विल बी डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो, जब हम चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट करेंगे अपना सेंट्रल बैंक के बारे में या कमर्शियल बैंक्स के बारे में. तब हम डिपॉजिट्स को और डिटेल में डिस्कस करेंगे. चलिए स्टार्ट करें. सो व्हाट इज़ M1 मेजरमेंट? M1 मेजरमेंट हैज़ 3 कंपोनेंट्स. वन इज़ C, सेकेंड इज़ DD एंड थर्ड इज़ OD.
What is C? C refers to the currency. It includes the coins plus notes held by the people. जो सर्कुलेशन में हमारे पास हैं वो तो आ जाएगा C में. DD आ जाएगा डिमांड डिपॉजिट्स. जो डिमांड डिपॉजिट्स पब्लिक के कमर्शियल बैंक्स के पास है. OD में आ जाता है अदर डिमांड डिपॉजिट्स. ये डिमांड डिपॉजिट्स ऐसे हैं जो RBI के साथ है. RBI is the apex body of entire banking system in India. apex body मतलब जो सुप्रीम है, जो सबसे सुपरवाइज़र है हमारे बैंकिंग सिस्टम का, वो RBI है. चलिए इसको थोड़ा सा और डिटेल में डिस्कस करें. यहाँ पर आपको क्या याद रखना है बच्चे? M1 is equal to C plus DD plus OD. Move to the next. C refers to currency held by the public which includes coins plus notes. DD refers to the net demand deposits of the people with commercial bank. Net demand deposits का मतलब जो लोगों के कमर्शियल बैंक्स के पास है. कमर्शियल बैंक्स के आपस के डिमांड डिपॉजिट नहीं. आप आगे हम डिस्कस करेंगे कि दो बैंक्स जो हैं कमर्शियल बैंक, कोई भी दो बैंक, उनके आपस में भी इंटर बैंकिंग क्लेम्स होते हैं. मतलब एक दूसरे के साथ उनके डिमांड डिपॉजिट्स होते हैं. पर इसको हम सप्लाई ऑफ मनी में काउंट नहीं करेंगे. सप्लाई ऑफ मनी में क्या आएगा? डिमांड डिपॉजिट्स ऑफ पीपल विद कमर्शियल बैंक. अब OD आपको बहुत अच्छे से लर्न करना पड़ेगा. इट रेफर्स टू द डिमांड डिपॉजिट्स विद RBI. डिमांड डिपॉजिट्स किसके साथ? RBI के साथ. किसका? पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन लाइक NABARD. आपने इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट NABARD के बारे में पढ़ा था. देन डिमांड डिपॉजिट्स विद RBI ऑफ फॉरेन सेंट्रल बैंक एंड फॉरेन गवर्नमेंट. Then demand deposits with RBI of international financial institutions like IMF, World Bank, etc. मतलब RBI के साथ आपको 3 पॉइंट डिस्कस करने हैं. पहली बात तो डिमांड डिपॉजिट्स विद RBI आएगा. ऑफ किसका? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन. ऑफ किसका? फॉरेन सेंट्रल बैंक एंड फॉरेन गवर्नमेंट. ऑफ किसका? इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस like IMF, World Bank, etc. So this is about the M1 measurement. बच्चे आपने इसको बहुत अच्छे से लर्न करना है. क्वेश्चन बनता है आपका, ब्रीफली एक्सप्लेन M1 measurement of money supply or supply of money in India. Got it बेटा? With this your chapter is over. अब हम थोड़े से पॉइंट्स और डिस्कस करेंगे. Who supplies money in India? Supplier of money are Central Bank of the country, the government and commercial bank. Central Bank इंडिया में कौन सा है? RBI. RBI has a sole authority of issuing currency. मतलब इंडिया में करेंसी जो है वो RBI इशू करता है. RBI जो इशू कर रहा है यहाँ पर मिनिमम रिजर्व सिस्टम को फॉलो किया जाता है. मिनिमम रिजर्व सिस्टम का मतलब क्या है कि RBI अपने पास 200 करोड़ रुपीज़ का रिजर्व मेंटेन करता है. मीन्स इन दिस सिस्टम RBI maintains a minimum reserve of rupees 200 crores in the form of gold and foreign security. मीन्स ये जो 200 करोड़ हैं ये इंटरनेशनल एक्सेप्टेंस के होने चाहिए. गोल्ड आपको पता है इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है. सिमिलरली फॉरेन सिक्योरिटीज आर ऑल्सो एक्सेप्टेड इंटरनेशनली. सो ऑन द बेसिस ऑफ दीज रिजर्व्स ऑफ 200 करोड़ RBI कैन इशू unlimited paper currency. Got it beta? Now what's about the government? Government has an authority to issue all types of coins and 1 rupee note. Clear? RBI के पास क्या है? सारे तरह के नोट्स वो इशू करता है except 1 rupee note because the government of India has a sole authority of issuing all types of coins and 1 rupee note. Commercial banks do not have any authority of issuing currency, but they contribute in money supply by the process of credit creation. हम नेक्स्ट चैप्टर में क्रेडिट क्रिएशन को ध्यान से स्टडी करेंगे. पूरा क्वेश्चन है हमारा. यहाँ पर आपको क्या लर्न करना है? Who supplies money? First is the RBI, that is Central Bank of the country. Second is the government and the commercial bank. Clear बेटा? Move to the next topic. Supplier of money. Commercial banks are second significant sources. अभी मैंने इसके बारे में डिस्कस किया, आप इसको रीड कर लीजिए. Then some important terms.
First is about the bank money. Demand deposits or checkable deposits of the people with the commercial banks are also known as बैंक मनी. अभी मैंने आपको बताया कि हम जनरल पब्लिक कमर्शियल बैंक्स में अपनी डिमांड डिपॉजिट्स रखते हैं, मतलब चेकेबल डिपॉजिट्स हैं दैट कैन बी विदड्रॉन एट एनी टाइम. दिस इज नोन एज बैंक मनी. नाउ हाई पावर्ड मनी, इट इंक्लूड्स करेंसी हेल्ड बाय द पीपल, वॉल्ट कैश ऑफ कमर्शियल बैंक. वॉल्ट कैश का मतलब होता है डिस्क्रिशनरी पावर. अभी नेक्स्ट चैप्टर जब हम डिस्कस करेंगे क्रेडिट क्रिएशन का, एक्चुअल में क्या होता है कि जो कमर्शियल बैंक्स होते हैं वो डिपॉजिट लेते हैं और लोन प्रोवाइड करते हैं. मीन्स द मेन मोटिव, द मेन फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक्स इज टू एक्सेप्ट द डिपॉजिट्स एंड टू एडवांस द लोन्स. अब कितना लोन वो दे सकते हैं और कितना पैसा उनको अपने पास एज अ रिज़र्व रखना है, कुछ तो सेंट्रल बैंक डिसाइड करता है. जैसे हम ये कहें कि लीगल रिज़र्व रेशो, कि कम से कम इतना कैश उसको रिज़र्व फॉर्म में रखना पड़ेगा, ये तो मैंडेटरी हो गया. उसके अलावा कमर्शियल बैंक अपने पास अपनी मर्जी से भी कैश रखते हैं, इसको हम कहते हैं वॉल्ट कैश ऑफ कमर्शियल बैंक. नेक्स्ट चैप्टर में हम इसको डिस्कस करेंगे. देन द कैश रिजर्व्स ऑफ कमर्शियल बैंक्स विद आरबीआई. आरबीआई के पास भी सेंट्रल बैंक को अपना कैश रखना पड़ता है, आरबीआई के पास भी हर कमर्शियल बैंक को अपना अपना कैश रखना पड़ता है. सपोज करिए कि कमर्शियल बैंक है ए, उसके पास 100 करोड़ के डिपॉजिट आए, डिपॉजिट एक्सेप्ट उसने कर लिए, लेकिन वो 100 करोड़ के 100 करोड़ का लोन नहीं देगा आगे. उसमें से कुछ तो उसको क्या करना है, कैश रिजर्व की फॉर्म में आरबीआई के पास रखना है. सपोज करिए 10% मैंडेटरी है जो उसको वहाँ रखना पड़ेगा, बाकी 10% वो अपने पास रख रहा है, बाकी ये तो कंपल्सरी है कि 20% उसको अपने पास रखना है. 80% तक वो लोन दे सकता है, लेकिन फिर भी उसे अपने पास 10% और भी अपनी मर्जी से रख लिया. दिस इज द वॉल्ट कैश. क्लियर बेटा? सो इट इंक्लूड्स करेंसी हेल्ड बाय द पीपल, वॉल्ट कैश ऑफ कमर्शियल बैंक्स and cash reserves of commercial banks. Move to the next. This is about few important terms. One is the fiat money. Fiat money का मतलब क्या होता है? ऐसी मनी जो गवर्नमेंट इशू करती है, मतलब अथॉरिटी इशू करती है. अगर मैं आपको ये कहूँ एक 500 रुपीज़ का नोट है, उसके ऊपर आरबीआई गवर्नर के सिग्नेचर हैं, इट हैज़ एक्सेप्टेंस, यूनिफॉर्म करेंसी है, जनरल एक्सेप्टेबिलिटी है. एक कागज़ के ऊपर मैं लिख दूँ 500 रुपये और नीचे अपने सिग्नेचर कर दूँ, विल यू एक्सेप्ट दैट पेपर? नो, बिकॉज दिस इज़ नॉट issued by some governing authority. So what is fiat money? Fiat money is the money which is issued by order of the government or by an authority in terms of notes and coins in circulation, and it has general acceptability. ये बात ध्यान में रखना. fiat money का पर्पस क्या होता है? It has general acceptability. कोई भी इंडियन जो इंडिया में रह रहा है उस 500 रुपये के नोट को एक्सेप्ट करने से मना नहीं कर सकता. ये इलीगल हो जाएगा, मतलब ये एक ऑफेंस हो जाएगा अगर वो आदमी उस 500 रुपये के नोट को एक्सेप्ट नहीं करता जो फेक नहीं है, जो मतलब आप कह सकते हो कि मतलब फेक करेंसी नहीं है, डुप्लीकेट अगर नोट नहीं है तो आप उसको लेने से मना नहीं कर सकते. देन अबाउट द फिड्यूशरी मनी. देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन फिएट मनी एंड फिड्यूशरी मनी. फिएट मनी में जनरल एक्सेप्टेबिलिटी होती है, लेकिन फिड्यूशरी मनी में जनरल एक्सेप्टेबिलिटी नहीं होती, बिकॉज इट इज़ बेस्ड ऑन द ट्रस्ट बिटवीन द पेयर एंड द पे. फॉर एग्जाम्पल चेक्स एंड ड्राफ्ट्स. अगर मैंने किसी को पेमेंट देनी है और मैं उसको कैश की बजाय 50,000 का चेक दे रही हूँ, तो ये ज़रूरी नहीं है कि वो आदमी मेरा चेक एक्सेप्ट करे, क्योंकि अगर उसको मेरे ऊपर विश्वास नहीं है तो वो मेरा चेक एक्सेप्ट नहीं करेगा. मीन्स फिड्यूशरी मनी पूरी तरह से किस पर डिपेंड कर रही है? म्यूचुअल ट्रस्ट बिटवीन द पेयर एंड द पे. देन द फुल बॉडीड मनी. अब इस पॉइंट को फिर से समझिए. फुल बॉडीड मनी का मतलब क्या होता है? द मनी in which the face value or the purchasing power of
currency is equal to the material with which it is made of. मतलब अगर मैं आपको 500 रुपये के नोट के बारे में बात करूं, 500 रुपये का जो नोट है उसकी फेस वैल्यू या परचेजिंग पावर है 500 रुपीज़. परचेजिंग पावर, फेस वैल्यू कितनी है? 500 रुपये. मतलब मैं उस कागज़ से 500 रुपये का सामान खरीद सकती हूँ. लेकिन अगर मैं उस कागज़ के टुकड़े को फाड़ दूँ, मतलब 500 रुपये के नोट को मैं छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट कर दूँ, उसमें उसकी वैल्यू कितनी है? ज़ीरो. क्योंकि उसके मटेरियल की वैल्यू नहीं है, उस कागज़ की अपने आप में कोई वैल्यू नहीं है. तो जो प्रेजेंट वीक करेंसी चल रही है, जो पेपर नोट्स हैं, वो कैसे हैं? क्रेडिट मनी है. क्रेडिट मनी रेफर्स टू द मनी इन विच मनी वैल्यू इज़ मोर देन द कमोडिटी वैल्यू. लेकिन जो पहले टाइम में सिल्वर कॉइन्स चलते थे, अगर हम ब्रिटिश पीरियड के बारे में बात करें तो जो सिल्वर कॉइन होता था, चांदी के सिक्के होते थे, उसमें 100 पैसे उसकी मटेरियल की वैल्यू होती थी और 100 पैसे ही उसका फेस वैल्यू होती थी. सो फुल बॉडीड मनी रेफर्स टू अ मनी इन विच द कमोडिटी वैल्यू इज एग्जैक्टली इक्वल टू इट्स मनी वैल्यू और परचेजिंग पावर और फेस वैल्यू. मतलब जितने का वो, जैसे मैं सिल्वर कॉइन की बात कर रही हूँ, अगर सिल्वर कॉइन को मेल्ट करा के बेचा जाए तो भी उस चांदी की वैल्यू 100 पैसे ही होती थी, और अगर उसको सर्कुलेट किया जाए तो भी उसकी वैल्यू 100 पैसे ही होती थी. मीन्स पहले जो कॉइन्स चलते थे वो फुल बॉडीड होते थे. लेकिन अब जो मनी चल रही है वो कैसी मनी है? क्रेडिट मनी है. मतलब अगर हम पेपर नोट्स के बारे में बात करें, दीज आर इसेंशियली क्रेडिट मनी बिकॉज द परचेजिंग पावर और द फेस वैल्यू और द कमोडिटी वैल्यू इज़ लेस देन द मनी वैल्यू. जो उसकी फेस वैल्यू है वो ज़्यादा है, उसकी जो परचेजिंग पावर है वो ज़्यादा है, लेकिन उसकी कमोडिटी वैल्यू और जिस मटेरियल से वो बना हुआ है वो वैल्यू उसकी कम है. सो दिस इज़ अबाउट द क्रेडिट मनी. सो with this your topic is over. Dear students, go through the chapter thoroughly. जितने भी क्वेश्चंस हैं, ज़्यादा क्वेश्चन इसके बनते ही नहीं है, 2 ही क्वेश्चन हैं आपके. पहला क्वेश्चन डिफाइन मनी. सेकेंडली ब्रीफली एक्सप्लेन सप्लाई ऑफ मनी, दैट इज M1 मेजरमेंट. इस क्वेश्चन को ऐसे भी कह सकते हैं, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मनी सप्लाई, हाउ इट इज़ मेजर्ड इन इंडिया. तो 2 ही क्वेश्चन आपको अच्छे से प्रिपेयर करने हैं. क्लियर बेटा? So be sincere, do your work properly. Goodbye dear students, have a wonderful day. Prepare your notebooks also. Goodbye dear students.